Good evening and welcome everyone to this session on Indian polity. In this class, we are going to cover Article 15, 16, 17 and 18. Probably, we'll also be covering Article 19 if the time so permits. Okay, अगर time allow करेगा तो Article 19 को भी देखेंगे. At least the brief introduction of Article 19 we'll be seeing. कि Article 19 में जो freedoms हैं, 6 type of freedoms that are given under Article 19 will also be covered. Let me just log into my account so as to keep a tab on your chat. Everybody will be added to these groups. Just ping me on the Telegram. Not added to polity group, not added to GS or not added to economy, depending upon which course have you enrolled yourself into. So article 15, कल हमने समझा article 15 is available only to citizens. Article 15, 16, 19, these articles are available only to the citizens. Article 15, 16, 19, 29 and 30, these articles are available only to the citizens in India. Rest of the fundamental rights are available to both citizens as well as non-citizens. Clear? तो बाकी के fundamental rights non-citizens को भी available हैं. 15, 16, 19, 29 and 30 they are available only to the citizens of India. Please write it down somewhere. कभी कभी ये पूछ लिया जाता है which of the following rights are available. So yesterday we underlined these facts which you have to memorize. I hope you are already revising things. Now, nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. Nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any law, any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled caste and scheduled tribes. Okay, this has to be looked in a positive manner. Then article 15 has got another clause, clause 5. Nothing in this article or in subclause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of socially and educationally backward classes. Right? For the advancement of socially and educationally backward classes. Just 1 minute. So this is there, then just give me 1 minute guys. Now coming to the other aspects, यहाँ पे कोई भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए अगर सिटीजन्स के लिए कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप अगर लेना है, अगर उनको रिजर्वेशन देना है तो वो अलाउड है, राइट. और फॉर द scheduled caste or scheduled tribes insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state. कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर एडेड हैं या अनएडेड हैं बाय द स्टेट, उसमें ये रिजर्वेशन के प्रोविजंस, एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट्स, ये इसमें अलाउड होगा. ठीक है. अब यहाँ पे EWS कोटा के बारे में भी हम बात करेंगे. आई विल डिक्टेट यू सर्टेन पॉइंट्स, सो बी रेडी विद योर पेन्स एंड नोटबुक्स. तो स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब के लिए क्लॉज 5 एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को कि पार्लियामेंट किसी लॉ के जरिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है बाय लॉ. गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई एग्जीक्यूटिव रूल के जरिए नहीं बना सकती. पार्लियामेंट कैन बाय लॉ, गवर्नमेंट कैन नॉट.
parliament or state legislature can by law make provisions for the educational advancement of socially and educationally backward classes. यहाँ पे और नहीं दे रखा, और नहीं दिया यहाँ पे, socially और educationally backward, socially and educationally backward classes of citizens, insofar as such special provision relate to their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided. Aided का मतलब है whether financially or in kind help is being provided by the state or not. समझ में आया? आर्टिकल 15 के अराउंड जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा है, आई विल बी डिक्टेटिंग सर्टेन पॉइंट्स टू यू इन रेफरेंस टू दैट. क्लियर? समझ में आया? अब ये फर्स्ट अंडरलाइन दीज फैक्ट्स कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं जहां तक इनकी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का सवाल है. ठीक है, जहां तक इनकी रिजर्वेशन का सवाल है. करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना. ठीक है, क्रीमी लेयर बाद में 16 की जो बात है उसमें बाद में बात करेंगे, अभी आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अदर दैन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे ये लिखा है कि कोई भी स्टेट का, कोई भी हमारी इंडियन स्टेट में, नेशन स्टेट में, कहीं भी अंडमान एंड निकोबार में या जम्मू एंड कश्मीर में या तमिलनाडु में या पंजाब में कोई भी स्कूल या कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी है, उसमें सरकार सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ऑफ द सिटीजन्स, यहाँ पे क्लासेस दे रखा है. ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट नहीं दे रखा, यहाँ पे क्लासेस दे रखा है. प्लीज अंडरलाइन दीज फैक्ट्स, प्लीज बी केयरफुल. दीज आर सम थिंग्स व्हिच आर टू बी मार्क्ड विद अ स्टार मार्क. with the backward classes of only citizens are available, क्योंकि आर्टिकल 15 is available to citizens only. और for the scheduled caste, अब यहाँ पे scheduled caste एक अलग कास्ट लिखा गया है जबकि यहाँ पे क्लास लिखा गया है. ठीक है, इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजंस रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग, so article 15 clause 5 is applicable even to private educational institutions. यानी कि मैं जब इसे अपनी नोटबुक में लिखूंगा या आपको जो लिखना है, आपको लिखना है PEI शॉर्ट फॉर्म में, ये पता होनी चाहिए. यूपीएससी के एस्पिरेंट की ये जिम्मेवारी है. ठीक है, जैसे ILU क्या होता है, आई लव यू, वैसे PEI क्या होता है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, ये नया प्यार है जिसे जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी अत्याचार से बचोगे. अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट नहीं देने पड़ेंगे. नाउ समझ में आया? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोई भी एक्सेप्ट, ठीक है, कोई भी एडेड है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सरकार से फिनेंशियल या कोई और मदद ले रहा है, आर्थिक मदद ले रहा है. जैसे कि हमारे स्कूल में क्या होता था, एनुअल फंक्शन होता था तो मंत्री जो है 5 लाख का चेक दे के चले जाते थे. एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट या कॉलेज में गए तो फिर कॉलेज में 20 लाख का चेक हो गया. एनुअल फंक्शन पे आते हैं ना वो मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो दे कैन गिव यू अ फिनेंशियल असिस्टेंस. और अगर ये कहा जाता है कि टीचर्स की सैलरी हम पे करेंगे, या फिर ये कहा जाता है कि प्राइवेट कॉलेज है, ट्रस्टीज उसे मैनेज करते हैं लेकिन सरकारी टीचर वहाँ पे सरकार अपॉइंट करती है, या फिर सरकार ने लैंड दिया हो, सारा लैंड नहीं, सिर्फ 10% लैंड दे दिया हो, बगल में कोई कॉलेज के, प्राइवेट कॉलेज के जस्ट एडजेसेंट कोई पार्क था, पब्लिक प्लेस था, सरकार ने बोला कि चलो ठीक है तुम इसे प्ले ग्राउंड बना लो स्कूल के बच्चों के लिए. तो किसी भी तरह की अगर सरकार, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एड देती है तो भी, एड नहीं देती, हेल्प नहीं करती तो भी ये अवेलेबल होगा, तो भी रिजर्वेशन उस पर लागू की जा सकती है एडमिशन में. मेरा स्कूल, अब यहाँ पे दिक्कत पता क्या आती है, प्राइवेट स्कूल है, मेरा स्कूल मेरे खर्चे से चल रहा है, मैंने उसमें दिमाग लगाया, बिजनेस लगाया, सरकार ने बोला कि हम इस पे एडमिशन
के नॉर्म्स जो हैं, रिजर्वेशन के नॉर्म्स जो हैं वो लागू कर सकते हैं. इट इज अप टू द गवर्नमेंट. क्लियर? तो कोई प्राइवेट कॉलेज ये नहीं कह सकता कि नहीं ये तो मेरा राइट टू डू बिजनेस है. नो, दे कैन नॉट से दिस. क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस इज व्हाट हैज बीन डन already in many cases. This is what could be done in the coming years. The reservation could be increased. अब यहाँ पे पता क्या है, कोई भी यहाँ पे लिखा है other than minority educational institutions. minorities को अपने धर्म को, जैसे मैं तो क्या था कि I was in पंजाब, तो I was in दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूल. ठीक है, अब वहाँ पे क्या कराया जाता था कि वो तो मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है. अगर कोई बच्चा पंजाब में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी मदरसा में पढ़ रहा है या किसी खालसा स्कूल में, जो कि पंजाबीज जो सिखों का जो स्कूल होता है, किसी उस खालसा स्कूल में कोई अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, माइनॉरिटी मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज रिलीजन्स हैं, उनके लिए कुछ ये प्रोविजंस रखे गए हैं कि वो अपने कॉलेजेस या स्कूल्स में अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं. ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन वो इम्पार्ट कर सकते हैं, सो एज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर रिलीजन. उनके बच्चे जो हैं उनके धर्म में रहेंगे या कुछ भी, तो फिर उनकी भी आगे प्रगति होगी, उनके धर्म की भी प्रचार होगा, ये सब. इसलिए तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे Article 15 clause 5 is not applicable. Please write down, Article 15 clause 5 is not applicable on minority educational institutions. So Maddie is also attending the polity class. Probably he would become the next what? Now coming here, समझ में आया ये point? Is it fine? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब मैंने बता दिया. क्लियर? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मीन्स दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विच आर रन बाय माइनॉरिटी रिलीजन्स. जो रिलीजन्स माइनॉरिटी में हैं उनके द्वारा चलाए जा रहे स्कूल्स को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस कहा जाता है. ठीक है, सो दिस इज देयर. नाउ Article 19 clause 1 subclause G, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. To practice any profession or to carry on any trade or business. यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि देखो मेरे धंधा चल रहा है सरकार. अगर सरकार चाहे ऑनलाइन, इसमें नहीं लिखा अभी, ठीक है, अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये चाहे कि ऑनलाइन एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे भी रिजर्वेशन लगाई जा सकती है, यस, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट को ये लॉ अमेंड करना होगा. 2006 में ये क्लॉज 5 ऐड किया गया. आगे इसकी पूरी हिस्ट्री भी है, देखोगे बाद में. ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑनवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और समथिंग वी कॉल एज एफर्मेटिव एक्शन. पॉजिटिव एक्शन taken for upliftment of the poor sections of society is called protective discrimination. Got it? सृष्टि, आप बेटर रहेगा कि इसे थोड़ा सा खुद से कवर करना. मैं एक बार समराइज कर देता हूँ क्योंकि आपने कंसर्न हाईलाइट किया था कि हम पीछे से नहीं देख सकते. हमने कल कवर किया था क्लॉज 4 तक, आज हम कवर कर रहे हैं क्लॉज 5. कोई भी ऐसी चीज़ जो इस आर्टिकल में दी गई है वो इस रास्ते में नहीं आएगी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में दी गई है. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी क्या कहता है? माई राइट टू डू बिजनेस. I being an individual, I being a citizen of India, I have got a right to do business in India. अगर मेरे बिजनेस स्कूल चलाने के रास्ते में या कॉलेज चलाने के रास्ते में कोई भी अगर ये चीज़ दी गई है तो मेरा ये हक सरकार के रास्ते में नहीं आएगा. अगर सरकार सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन लागू करती है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में सोनिया गांधी लेड कांग्रेस पार्टी के अंडर
ये लॉ पास किया। उस टाइम पे बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, आपको भी पता होगा, एम्स के स्टूडेंट्स, मेडिकल एजुकेशन और ये सब चीज़ों में ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पहले आया करो। देखो इंडिया में ना बाद में आने वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी ना उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। वो नेता लोगों की होती है। अभी तुम लोग क्या हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो, है ना। टीचर लेट आए तो उसकी तो मर्जी है, कलयुग थोड़ी ना आया अभी कि स्टूडेंट बाद में लेट आएंगे। टीचर लेट आए तो चलता है, ठीक है। पुराने ज़माने में टीचर क्या करते थे, दारू मंगाते थे, लस्सी मंगाते थे, बहुत कुछ मंगाते थे। पंजाब में आओगे कभी तो बहुत कुछ मंगाते थे, मक्की दे डोडे थे, सरसों दा साग। अब तुम लोग अगर लेट आओगे तो क्या होगा, साग पड़ जाएगा फिर यहाँ पे। समझ में आया ना। आर्टिकल 30 क्लॉज 1, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश। तो मैंने क्या किया है, इस पीपीटी को हमने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि जो भी चीज़ हमने यहाँ पे समझी उसका आर्टिकल 19 का रेफरेंस इसमें आ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है तो मैंने आपको ये चीज़ें अंडरलाइन करवा दी, द फैक्ट्स दैट यू नीड टू फोकस अपॉन in order for you to be on the right side in the prelims. Clear? So this is there. Okay, I can understand that. It was just on a lighter note. Right, now so this is there. Now clear to everyone, आर्टिकल 30 के ऊपर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। डन फॉर एवरीवन। सो आगे चलते हैं। एफर्मेटिव एक्शन, आर्टिकल 15 क्लॉज 3। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 empowers the state to make special provisions for women and children. Article 15 clause 4 empowers the state to make special provisions for advancement of socially and educationally backward classes और for SCs। यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे क्लासेस दे रखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा लगे हाथ पहले इसको वाइंड अप कर लेता हूँ, चलो। उसके बाद मैं बताऊंगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन लाई गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। पॉलिटी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सो इज़ इकोनॉमी ऑल्सो, सो इज़ ज्योग्राफी। बट पॉलिटी में हम डेली जो है काफ़ी कुछ न्यूज़पेपर में देखते हैं। 15 क्लॉज 5 गोज वन स्टेप फर्दर। क्लॉज 3, क्लॉज 1 और 2 पे तो हमने देखा कि स्टेट ये नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। क्लॉज 1 कहता है स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। याद हो रहे हैं आर्टिकल 15 क्लॉज। तुम्हें लगता था कि आर्टिकल 15 याद करना ही मुश्किल है, लेकिन क्लॉजेस भी याद हो सकते हैं अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से दी गई हो। क्लॉज 1 और 2 ये कह रहे हैं प्रोहिबिटरी हैं। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट प्राइवेट इंडिविजुअल्स और नो इंडिविजुअल शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, ठीक है। क्लॉज 3 से शुरू हो जाती है पॉजिटिव लैंग्वेज, एक वे से, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, क्लॉज 3 ये कहता है। क्लॉज 4 ये कहता है। क्लॉज 5 गोज वन स्टेप फर्दर एंड एम्पावर्स द स्टेट ऑफ इंडिया, द नेशन स्टेट, टू मेक रिजर्वेशन इन एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल्स और इवन कॉलेजेस, इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल्स, वेदर और नॉट एडेड। चाहे सरकार ने एनुअल फंक्शन पे कोई मंत्री गए हो, कोई चेक नहीं दिया, गवर्नमेंट ने, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने, ना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना यूजीसी ने, ना तो कोई जमीन दी, ना कोई फाइनेंशियल एड दी, ना टीचर्स अपॉइंट करे सरकारी, कुछ भी फ्री में नहीं दिया, तब भी प्राइवेट सेक्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है। Only minority educational institutions are exempted, are left out of this provision. Done है। Article 15 clause 3 and Article 15 clause 4 are the bedrock of reservation in the country. We will see Article 16 also. Done? क्लियर फॉर एवरीवन। तो दिस इज व्हाट इट सेज। अब देखो इसका यूज कहाँ किया गया, जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, बच्चों के लिए क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया। 86 6 to 14 ईयर्स के एज के जो चिल्ड्रन हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू फ्री एजुकेशन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। डन। उस टाइम पे 25% सीट्स वर रिजर्व्ड इन द स्कूल for children hailing from backward sections of society। ये कहा गया कि the students hailing from the backward sections of society
Private educational institutions like Modern Public School in Delhi, Ryan International, schools like Ryan International, they should reserve 25% seats for slots for the children hailing from the backward sections. 2010 में ये लाया गया प्रवीण. 86th Constitutional Amendment Act was brought about in 2002, but it was implemented in the year 2010. Right to education 1st April 2010 onwards इसे लाया गया. Done? Just 1 minute, guys. Am I clear? So this is there. Now coming to the other aspects, only minority educational institutions. अब बात करते हैं 2019 February. Government of India brought about a provision for reservation for economically weaker sections. As I told you that Article 15 Clause 5 envisages, shall I erase it? Please focus on these keywords. PPT has already been provided. If you guys have already taken a printout of it, you can just underline or encircle these words. ठीक है, जो रेड में है उनको रेड में ही पढ़ना. बार बार इन्हीं पीपीटी से रिवाइज करोगे तो चीज़ें सही रहेंगी आप लोगों के लिए. जो फैक्ट्स टू बी ऑब्जर्व्ड हैं वो इसमें बोल्ड में या रेड में कलर स्कीम कुछ ऐसा यूज़ किया गया है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आई एम इरेजिंग दिस नाउ. Nothing in this article or in subclause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provisions by law only. Fact highlighted. For the advancement of any socially and, यहाँ पे और नहीं दे रखा कि चलो socially नहीं तो educationally backward. ठीक है, classes of citizens. यहाँ पे ना सोशल बैकवर्डनेस दे रखा है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस दे रखा है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एज अ क्राइटेरिया नहीं दे रखा. नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एज अ क्राइटेरिया हैज बीन अलाउड, बट स्टिल गवर्नमेंट हैज प्रोसीडेड अहेड and provided the reservation on the basis of economic weakness, economically weaker sections. अगर ये सोशियो इकोनॉमी वीकनेस होता तब भी ये अलाउड था टू सम एक्सटेंट कि चलो सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो के साथ में, सोशल के साथ में एक और न्यू क्राइटेरिया आपने अलाउ करा, तब तो आप फिर भी रिजर्वेशन दे देते. लेकिन आपने तो कंप्लीटली एक्सट्रेनियस इन आइसोलेशन इकोनॉमिक वीकनेस को एक क्राइटेरिया माना. बात समझ में आ रही है? यस मिताली, यू आर राइट. ओके, तो अब आगे चलें, समझ में आ गया ये? तो अमेंडमेंट क्या थी? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. प्लीज राइट डाउन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड टू a 5-judge constitution bench. All the petitions challenging, जितनी भी petitions थी जो इसको चैलेंज कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने 5-judge constitution bench के सामने वो मैटर को रखा. क्लियर? एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वुड बी द अप्रोप्रिएट फोरम, द प्लेटफॉर्म टू स्टडी दिस इशू. क्या है 103rd Constitutional Amendment Act? Related to Article 15 and 16. It provides for 10% reservation in the government jobs and educational institutions. It provides for reservation in the government jobs also. गवर्नमेंट जॉब वाला जो इसका एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट जॉब वाला जो इसका एस्पेक्ट है वो आर्टिकल 16 में हम कवर करेंगे. आर्टिकल 15 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द
in the overall matters. ठीक है, Article 16 deals with the prohibition of discrimination in the employment related matters. समझ में आया? एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मैटर्स के लिए आर्टिकल 16 है, जबकि ओवरऑल मैटर्स की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो आर्टिकल 15 में है. मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले से, ये चीज़ें अच्छे से याद होने लग जाएंगी. इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन पीपीटीज को आप रिकोर्स लेके चलोगे तो चीज़ें आसान रहेंगी. जस्ट अ मिनट, आई जस्ट वांट टू शो यू. सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन, लेंदीएस्ट, वन ऑफ द लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों कहा जाता है? ठीक है, नो इट्स मैंडेटरी. आप कैसे इन्फर कर रहे हो प्राची कि मैंडेटरी नहीं है? मैंडेटरी है. ठीक है, 2006 से ये मैंडेटरी कर दिया गया. देखो, आर्टिकल 14 सिंपली ये कह रहा है राइट टू इक्वालिटी. क्या ये इनफ नहीं है? हर तरह की इक्वालिटी, बाकी काम सुप्रीम कोर्ट कर लेता. अगर कोई यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन होती जहाँ पे इंग्लिश वाज अ कॉमन लैंग्वेज, और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास में ज़्यादा टाइम नहीं होता तो वो सिंपल आर्टिकल 14 लिखते. ठीक है, फिर आर्टिकल 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. लिखने की क्या जरूरत है? लिख तो दिया भाई, इक्वालिटी है, बात खत्म. ठीक है, जब ये बोल दिया फैमिली में सारे जाएंगे, फिर ये क्यों बोलना है चिंटू भी चलेगा, मिंटू भी चलेगा, पिंटू भी चलेगा, टिंटू भी चलेगा? नहीं बोलना चाहिए ना. मतलब ठीक है, बट क्योंकि हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी, these things were so very etched, that discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth was so deeply etched in the Indian mind that constitution makers had to mention it. समझ में आया? उनको लिखना पड़ा स्पेसिफिकली कि ये ऐसा नहीं करोगे आप. अगर यहां पे लिख देते इक्वालिटी तो एम्फेसिस नहीं आता ना. ठीक है, वो फीलिंग नहीं आती, इसलिए ये लिखना पड़ा. अब थिंग्स डिड नॉट स्टॉप हियर. आर्टिकल 16 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब ये क्यों लिखना था? पता तो है ही कि भाई जब लिखा है ऊपर जनरली, तो फिर ये दोबारा से क्यों लिखना था कि इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी एम्प्लॉयमेंट में किसी के खिलाफ किसी भी तरह का पक्षपात नहीं हो सकता. ठीक है, एक अभी लिख रहा हूं, इसको याद कराना भी. यहां से अगर हम शुरू होते हैं तो ये जनरल प्रोविजन है. आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी इन जनरल सेंस. आर्टिकल 15 गोज अ लिटिल डीपर एंड सीक्स टू specify the basis on the basis of which discrimination cannot be there. Article 16 goes a step further, goes even deeper and makes specific that there can be no discrimination on the basis of these things. समझ में आया? क्यों? क्योंकि इंडिया में सरकारी नौकरी, तुम लोग भी आज भी लगे हुए हो है ना सरकारी नौकरी के लिए. नहीं होगी सरकारी नौकरी तो नहीं देंगे ससुर जी छोकरी. समझ में आया? आज भी वो वैलिड है. सरकारी नौकरी नहीं होगी तो कोई नहीं देता छोकरी, अभी भी आज ऐसा है. अच्छा, गवर्नमेंट में क्लर्क हो, बहुत अच्छे बेटा. ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर कंपनी में कोई वहाँ पे इंजीनियर लगाए, उसका नाम दे दिया है आर इंजीनियर विल विजिट, पहनता वो ब्लू कपड़े हैं, वही सब. ठीक है, AC ठीक करने जाता है वो इंजीनियर है, वहाँ पे भी ठीक है, जॉब इनसिक्योरिटी है. लेकिन जो पुराने लोग हैं, अपने दादा दादी से पूछो सरकारी नौकरी लग जा बेटा, यही बोलेंगे ना. इसीलिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाज सो इम्पॉर्टेंट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड टू मेंशन दिस. समझ में आया? रियलिटी है. ठीक है, तो इसीलिए तो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, फिर आर्टिकल 15, फिर आर्टिकल 16. अब मैं वापस चल रहा हूँ उसी आर्टिकल की तरफ, 15 की तरफ. अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन इस बेसिस पे लाया गया, गवर्नमेंट जॉब्स में और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, और
बाकी चीज़ों में, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इन दोनों चीज़ों में। अब इसमें क्या लिखा गया, ये लिखा गया इट प्रोवाइड्स फॉर 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इन द प्रोसेस 2 articles were amended, Article 15 and Article 16, that deal with the fundamental right to equality, specific elements of equality. Article 15 prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 16 guarantees equal opportunity in the matters of public employment. An additional clause was added to both the provisions, giving the parliament the power to make special laws for economically weaker section like it does for scheduled caste and scheduled tribes, ठीक है। तो क्लॉज 6 अब इसमें ऐड कर दिया गया आर्टिकल 15 में, एडिशनल क्लॉज ऐड कर दिया गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल स्टॉप द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। क्लियर है? नाउ please note down, the states, even though the parliament has created, the Parliament of India has passed the enabling legislation. It is the states which are actually going to decide what constitutes economically weaker section. Economically weaker section की जो सीलिंग है वो states decide करेंगी। Clear? वो पार्लियामेंट नहीं डिसाइड करेगा, क्योंकि जो ओबीसी की लिस्ट होती है, जो ओबीसी कैटेगरी है, उनकी जो लिस्ट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट अपनी अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए। यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, यूपीएससी कंडक्ट करती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन की जो ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट में जो ओबीसी कैटेगरी में मेंशन्ड है वो एलिजिबल हैं फॉर रिजर्वेशन। जो दूसरी लिस्ट में है दे आर, जो स्टेट की लिस्ट में है वो उस स्टेट में ओबीसी हैं। ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ओबीसी कैटेगरी है स्टेट में, लेकिन वो सेंटर की लिस्ट में अदर बैकवर्ड क्लासेस में, अदर बैकवर्ड कास्ट्स में नहीं आती। यस प्राची, यू आर राइट। ओके, मैटर्स ऑफ एफिशिएंसी आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को, जब सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट this matter, it is a constitutional matter, so it will be referred to a bench of minimum 5 judges. जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर करना जरूरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब एटलीस्ट अ बेंच ऑफ 5 जजेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है, ग्राउंड्स क्या हैं चैलेंज के, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया इस लॉ को? द लॉ वाज चैलेंज्ड प्राइमरीली ऑन 2 grounds. First, it violates something called as basic structure of constitution declared by the Supreme Court. There are certain elements of Article 15 which are basic elements of equality. जैसे कि right to equality is a part of basic structure of constitution. कुछ ऐसे provisions हैं constitution के जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डिक्लेयर करा है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अब अगर रिजर्वेशन 50% से ज्यादा एक्सीड करती है तो मेरा तो या फिर आपका भी हो सकता है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इज गेटिंग डाइल्यूटेड। आर्टिकल 14 जो जनरल आर्टिकल है कि सबके लिए इक्वालिटी है, सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए या एससीज के लिए नहीं है। अगर 50% से ज़्यादा 10% रिजर्वेशन आप और बढ़ा दोगे तो माई राइट टू और somebody else's right to equality, if I want to appear in this competitive exam, any of the competitive exams with the general category, with the non-reserved category, ठीक है, तो मेरे तो चांसेस क्या रह गए, मेरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगाएं तो मेरे पास सिर्फ 40% सीट रह गई है ना। 40% सीट्स में अब मेरी चांस क्या है, 1:40, एटलीस्ट मेरा 1:50 तो होना चाहिए, 50%। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट ने ये सीलिंग दी थी 1967 में, दैट रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन इन द कंट्री कैन नॉट एक्सीड 15%, 50%, राइट। अब मंडल कमीशन की भी बात करेंगे, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही, दिस आर्ग्यूमेंट
point number 1, that it violates the basic structure of constitution. This point stems from the view that special protection guaranteed to socially disadvantaged groups is a part of basic structure. ठीक है, and that 103rd amendment departs from this by promising special protection on the sole basis of economic status which is not envisaged in the constitution. ये भी तो एक पॉइंट हो गया ना कि इकोनॉमिक बेसिस ऑफ रिजर्वेशन तो आज तक दिया ही नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन में. तो आप आज की पार्लियामेंट जो है ट्रांजिशनरी बॉडी है जो 5 इयर्स की, जो 2014 से 2019 की जो पार्लियामेंटेरियंस थे, मेंबर्स थे, उनको इतनी पावर तो नहीं मिल गई ना कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है. ठीक है, पेटिशनर ने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है जिन लोगों ने इस रिजर्वेशन को चैलेंज किया है, इट हैज बीन चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वॉयलेट्स द सुप्रीम कोर्ट्स 1992 रूलिंग इन इंदिरा साहने केस which upheld the Mandal report but capped the reservation, overall reservation at 50%. ठीक है, तो मंडल कमीशन रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था 1992 में इंदिरा साहने जजमेंट में. कुछ चीज़ों को, मंडल कमीशन की कुछ चीज़ों को, रिपोर्ट के कुछ एस्पेक्ट्स को इनवैलिड डिक्लेयर करते हुए उस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन. इकोनॉमिक बैकवर्डनेस सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता रिजर्वेशन का. क्लियर? तो अभी तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाया जा रहा है और रिजर्वेशन इज एक्सीडिंग द अपर लिमिट ऑफ 50% फिक्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. Another challenge, the third challenge has been made on behalf of private, unaided, the institutions which are not seeking any help from the government. ठीक है, तीसरा बड़ा चैलेंज जो इसको है वो ये है कि प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ये स्लाइड्स नहीं चेंज होंगी. ठीक है, स्टक नहीं है भाई, स्टक नहीं है. स्टक कहाँ से हो गया? नो, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. Let me just check. Not even a single frame has dropped. Stuck नहीं है ये, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ. मैंने बीच में बोला अभी 3 पॉइंट्स हैं कि नंबर 1, दिस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन है उसको जो चैलेंज किया गया है 3 आधारों पे चैलेंज किया गया है. 3 ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन. नंबर 1, the sole criteria of economic weakness for granting reservation was disapproved by the Supreme Court in 1992 Indira Sahane case. Number 2, it breaches the upper limit of 50% set by the Supreme Court. Reservation cannot exceed 50%. Clear? Number 3, private educational institutions have challenged it on the grounds that it प्राइवेट एजुकेशनल अनएडेड. अगर मेरा कोई प्राइवेट कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, मैं कोई मदद ही नहीं ले रहा सरकार से, फिर मैं रिजर्वेशन क्यों दूं? मेरा फंडामेंटल राइट टू डू बिजनेस, टू कैरी आउट माई प्रोफेशन और बिजनेस इज गेटिंग वायलेटेड. दिस इज पॉइंट नंबर 3. क्लियर? The private colleges and institutions have argued that their fundamental right to practice a trade or profession is violated when the state compels them to implement its reservation policy and admits students on any criteria other than merit. 3 पॉइंट्स हैं, पहले एब्जॉर्ब करो फिर लिखो. छोटा छोटा तभी लिखोगे. ठीक है, अगर ऐसे लिखते रहोगे वो स्कूल के बच्चों की तरह तो दिक्कत हो जाएगी. मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे लिखो, इसीलिए मैं तेज बोलता हूँ. राइट? पर्पस ये नहीं है. यहाँ पे यही होता है बाजाराम में, 3 घंटे की क्लास होती है, 1.5 घंटा लिखाते हैं और 1.5 घंटा समझाते हैं. समझ में आया? बहुत अच्छा धंधा है ये. मैं ये सब नहीं करने आ रहा. आई वॉन्ट यू टू बी मेच्योर कि सुनो पहले, एब्जॉर्ब करो, अपने वर्ड्स में लिखो. दैट इज हाउ यू शुड मेक नोट्स. क्लियर?
Yes, this is a sort of violation नहीं है वो, they later on they opt for general category seat. ओके देखो ये पता क्या है, मैं इंश्योरेंस विदाउट एनी ऑफेंस, ठीक है, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेके गया, जब मेरी कार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मैंने नो क्लेम बोनस ले लिया. नो क्लेम बोनस समझते हो, जब हम कार का इंश्योरेंस कराते तो ऐसा होता है, क्लियर. अगर मैंने कार का 15,000 का इंश्योरेंस करवाया और मैं, अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि मैं कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं लूँ, अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो मैं इंश्योरेंस नहीं लेता, क्लेम नहीं लूँगा. क्यों? क्योंकि जो मैं नो क्लेम ले रहा हूँ, कोई भी क्लेम नहीं ले रहा मैं, अगली बार जब मेरी कार के फिर से 15,000 रुपये लगेंगे इंश्योरेंस के, तो मुझे नो क्लेम बोनस मिल जाएगा. कितना? 13,500. मेरे को 15,000 की जगह 13,500 पे करने पड़ेंगे. अब इसको रिजर्वेशन पे अप्लाई करते हैं. अगर कोई एक पर्सन रिजर्व कैटेगरी से है, अगर तो वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, प्रीलिम्स और मेंस बेसिकली अ लेवल अबव रिजर्व्ड कैटेगरी के मार्क्स से वो मार्क्स को, एग्जाम को क्वालिफाई करता है, तो फिर उसको ये हक है कि वो अपने आप को नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी का डिक्लेयर कर दे. ठीक है, ये वही बात हो गई, मैं कूदा आसमान से, पैराशूट लेके निकला, अगर मेरा पैराशूट काम नहीं आया तो मैं दुकान वाले को बोल रहा हूँ भैया इसे वापस ले लो, और फिर मैं ये फ्लॉन्ट करूँ कि देखो मैंने जनरल कैटेगरी के मार्क्स से कवर किया है और मैं जो रिजर्व्ड कोटा की सीट है वो नहीं ले रहा, मैं जनरल कैटेगरी की सीट में जा रहा हूँ. मेरे वाली जो सीट होगी, अगर मैं रिजर्व्ड कैटेगरी से हूँ तो वो किसी और को मिल जाएगी. समझ में आया? इसमें कुछ गलत नहीं है. बट once you are choosing the reserved category and if you clear the exam with a cutoff with the marks above the cutoff for the reserved category and with the marks level above the cutoff for general category, then you have a right to switch over into the general category. समझ में आया? Here it is economically weaker section criteria. Additional 10% seats have been reserved. Are you getting my point? Additional 10% seats are going to be reserved. Economically weaker section के लिए, सिर्फ उनके लिए ही. सोशियो इकोनॉमिक वालों के लिए, सोशियो एजुकेशनल वालों के लिए, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के लिए जो सीट्स चल रही थी वो अलग थी. विमेन के अगेंस्ट नहीं बना सकते, विमेन की फेवर में बना सकते हैं. ठीक है, फॉर विमेन एंड they have not booked a slot. It is a wrong way of saying that reserved category has booked a slot. It's just that कि ठीक है, अगर कोई अपनी डेस्टिनेशन पे उससे पहुंच जाता है. हाँ, इसकी वजह से क्या होता है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं या तो वो पहले से ही डिसाइड कर लें कि उन्हें रिजर्व कैटेगरी से एग्ज़ाम नहीं देना. ठीक है, बाद में ये माइग्रेट करने वाला जो प्रॉब्लम है वो गलत हो जाता है. ठीक है, समझ में आई बात? कि जो स्विच ओवर करते हैं तो इससे क्या होता है, जनरल कैटेगरी की जो इफेक्टिव सीट्स हैं वो कम रह जाती हैं. क्लियर? लेट्स नॉट गेट इनटू दिस थिंग, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पॉलिटिशियंस हमें बुर्बक बनाते हुए आ रहे हैं. दे आर मेकिंग अ फूल ऑफ अस कि रिजर्वेशन ले लो, रिजर्वेशन ले लो, बिकॉज वैकेंसीज आर रिड्यूसिंग, जॉब्स आर बीइंग प्राइवेटाइज्ड and vacancies are reducing, which is a good thing from administrative efficiency etc, but making the fool of people that you go out and protest on the road and I will become a political leader because you are protesting, you are torching the public property, FIR would be there against you, but in the process I will become the leader. That is wrong. समझ में आया? No reservation. Karthik? Clear? So this is there. Yes, right to equality is also getting violated. Article 14 में जो general equality है, Supreme Court had said that if the right to if the reservation exceeds beyond 50%, then it violates the right to equality. Now let us jump into another debate, whether economically weaker section reservation is good or bad. ठीक है, arguments in favor of economically weaker section, economically weaker section based reservation, whether it is a good criteria or not. ये ज़्यादा अच्छा point है.
right? तो this thing now, क्या ये अच्छा पॉइंट है? yes, it buries what? It buries the caste and communal cleavages. जो चीज़ों पे आप बात कर रहे हो, जो आपके आर्ग्यूमेंट्स आप देख रहे हो ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये बरी हो जाएंगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बेस्ड अगर रिजर्वेशन होगी तो ज़्यादा अच्छा है. अभी का जो सिस्टम है उससे ज़्यादा बेटर है ये, राइट? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है, उससे हम समझ सकते हैं. सो प्लीज़ राइट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स. नाउ द जर्नी फॉर द मेंस बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो स्टार्ट्स कि कैसे लिखना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो क्या होना चाहिए, राइट? अब एक चीज़ और बता दूं, जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसे 124th अमेंडमेंट बिल कहा गया था. जब ये पास हो गया तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया. बिल जो है वो ज़रूरी नहीं कि ऑल द बिल्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड दे वुड गेट पास्ड. इसीलिए इसका मतलब ये है कि 124 अमेंडमेंट बिल्स जो लाए गए थे उसमें से 21 लैप्स हो गए, पास नहीं हो सके. इसीलिए 103 out of 124 amendment bills that were introduced, only 103 have been able to see the light of the day. Clear? Now आर्टिकल 15 एंड 16 को जो है अमेंड किया गया है और ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करी गई हैं कि 10% रिजर्वेशन रहेगा, राइट? सिग्निफिकेंस क्या है? करंटली, प्लीज राइट डाउन, आई विल बी अ लिटिल स्लो. ठीक है, तुम लोग स्लो कह रहे हो. करंटली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजंस हैव रिमेन्ड एक्सक्लूडेड. देखो मैं इसको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ. कास्ट बेस्ड क्राइटेरिया विदाउट एनी ऑफेंस, अगर कोई सो कॉल्ड हायर कास्ट से है लेकिन वो गरीब है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता. अगर कोई लोअर कास्ट से है लेकिन वो हाई क्लास है, रिच है, ही इज एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन. ठीक है, होना तो ये चाहिए. what should be the case? The ideal case scenario would be the person who is rich but belongs to a lower caste should be excluded so that the downtrodden section of that society comes upwards. ठीक है, जो नीचे का जो अगर जो क्रीमी लेयर है वो निकल जाए, है ना? जो जैसे कि ओबीसी में क्रीमी लेयर है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं है. आज हो क्या रहा है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स who belonged to ST category, he entered into IIT because of his own hard work and all. IIT Roorkee, right? He passed out of IIT Roorkee and he got a job in BPCL. Now, do you think that a person, he availed of reservation here in his academic career, then he got reservation here for the second time? Do you think that he deserves reservation in the second time? First time ठीक है, without your mindset and all. Please shed your negative mindset against reservation. Think of it with an open mindset. ठीक है, be a clean slate here. I'll be a little slow while dictating. ठीक है, things do not stop here. He was earning a salary of 50,000 during the recessionary times in India. This thing did not stop here. He resigned from this and he ventured into UPSC. And he again availed of reservation. Don't you think that this is a luxury? Don't you think that this is a luxury? भैया तुम एक बार नहीं मिल रहा. उन्हीं की कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो SC ST हैं. ठीक है, दिस इज अ ग्लास एंड ही बिलोंग्ड टू द क्रीमी लेयर इन SC ST बिकॉज हिज फादर वॉज an Indian Forest Service officer and he retired from the post of Deputy Secretary or something of that level. His father was one who had arrested Salman Khan in the Black Buck hunting case in Rajasthan.
tribal population, a lot of tribal population, it belongs to Rajasthan. Otherwise a very good person, very good friend of mine, we used to have a discussion कि तुझे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, राइट? क्योंकि तेरी कैटेगरी के जो नीचे के लोग हैं, यू आर अ टॉप क्रीमी लेयर, you have availed of reservation, your father was an IFO's officer, forest service officer. अब जो नीचे का जो ग्रेविटी ये कहती है कि ऊपर की नीचे की चीज़ ऊपर तभी आएगी जब ऊपर वाली चीज़ नीचे आएगी. If these guys would corner the benefits of reservation again and again, तो क्या होगा? समझ में आया? Yes, successive reservation is not allowed, it is not prohibited. एक बार जो व्यक्ति अपने जीवन में रिजर्वेशन ले चुका है उसको दोबारा नहीं मिलनी चाहिए. अगर BPCL में जॉब मिल गई तो भैया आप खुद से कंपटीशन लड़ो, है ना? तो ये चीज़ है, समझ में आया? अब क्योंकि उनके ये रिजर्वेशन इनके लिए इसलिए दिया गया कि ये लोग बाकी लोगों को अवेयर करवाएंगे, फिर बाकी के लोग ऊपर आएंगे, लेकिन ऊपर का लेयर ही खाली नहीं हो रहा, तो दिक्कत वही हो रहा है. अब मैं इसको क्या बोलता हूँ? मिल्क क्रीम साइंड्रोम. ध्यान से समझना, जब आप दूध पीने लगते हो या चाय पीते हो ना, मलाई साइड में हो जाती है तो ऊपर की चाय या दूध आने लगता है ना, ऊपर आने लगता है व्हेन यू सिप अ कप ऑफ टी या कुछ ऐसा. बट इस केस में नहीं होता, मलाई कभी बाहर डुलती ही नहीं है, वो वहाँ पे बैरिकेड बन के खड़ी है. समझ में आया? अब आते हैं कि क्या इकोनॉमिक सेक्शन बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए. तो मैंने आपको बताया कि इवन इफ अ पर्सन इज रिच, बट उनको फिर भी गलत नाम से बुलाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, राइट? तो ये सब चीज़ों की वजह से इट इज़ अ रिजर्वेशन टुडे इज एक्टिंग एज अ काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर द ड्रजरी, फॉर द disrespect, for the shame that they face in the society, for the ignominious living that they have to face on a daily basis. ठीक है? तो ये एक रीज़न है कि आज हम रिजर्वेशन को कास्ट बेसिस पे जस्टिफाई कर सकते हैं. बट ये बात भी सही है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई अवसर नहीं है. People who belong to, point of fact to be noted, people who belong to SC, ST and other categories, they cannot avail of this reservation. Clear? It is exclusively for economically weaker section. Those who are already eligible for reservation in one or the other ways, OBC category या कुछ ऐसा, वो economically weaker section में नहीं आएंगे. Economically weaker section के लिए 8 लाख रुपीस की लिमिट रखी गई है. अब आगे चलते हैं फटाफट. EWS quota number 1. Currently, economically weaker sections of citizens have remained excluded from attending higher educational institutions. Currently, EWS sections of citizens have remained excluded from attending higher educational institutions and public employment due to their financial incapacity. Therefore, the 10% quota is a progressive step and it might go a long way in addressing the issues of education. Fake certificate मत अभी ये easy नहीं है, ठीक है? One of the content writers here, she is working here, I cannot disclose her name. She's filed a case in the Supreme Court for the reason that she had forged her documents for OBC. फेक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है या ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है ना इनकम सीलिंग का, कि हमारी फैमिली की जो टोटल इनकम है 8 लाख से कम है. तो बहुत सारे ऐसे ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो सब जगह जा आए हैं, मंदिर मस्जिद दरगाह, कि हमारी सुन लो. और DOPT ने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन करवा दिया कि किन की इनकम वाकई 8 लाख से कम है और किन की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है. अब जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता लगा कि जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है उन्होंने भी इसका लुत्फ़ उठाने के इंतज़ामात कर रखे थे. समझ में आया? तो फेक सर्टिफिकेट इज़ नॉट ईजी. तुम लोग ऐसे घर बैठे जो है पढ़ाई ना करने के बहाने ढूंढते रहते हो कि रिजर्वेशन है और ये सब है, तो कुछ भी बोलोगे तो गलत है ये, राइट? नाउ मैंने जनरल सा पॉइंट बोला है. करेंटली economically weaker EWS section of citizens have remained excluded from attending higher educational institutions. Clear?
तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो currently they don't have anything because 10% quota is a progressive step, therefore 10% quota is a progressive step and could address the issues of educational backwardness and income inequality in India, right? Reservation criteria, another reason for reservation criteria to be economic is because there are many people or castes, many people belonging to the backward castes who are otherwise rich, affluent, but they also avail of reservation, like the example that I gave you, right? Proposed reservation through the constitutional amendment will give constitutional recognition to the poor from the upper caste. अपर कास्ट पुअर जो है उसके लिए कुछ नहीं बचता ले दे के, है ना। अपर कास्ट पुअर, अपर कास्ट रिच फिर भी बिजनेस में सेटल हो जाएगा, कहीं हो जाएगा। अपर कास्ट पुअर हैज टू सफर, दैट्स द प्रॉब्लम। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इट विल रिमूव द स्टिग्मा ग्रेजुअली, दिस थिंग्स शुड प्रोसीड टूवर्ड्स फ्रॉम कास्ट टूवर्ड्स इकोनॉमिक क्राइटेरिया। धीरे धीरे से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को कम किया जाए और इकोनॉमिक रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, तो जो स्टिग्मा अटैच्ड विद दिस कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन शुड गो अवे, इट विल ऑटोमेटिकली फेड अवे। जनरल से पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है कि एकदम से कुछ यूनिक पॉइंट है। पॉइंट यही है सबसे बड़ा, द कास्ट एंड कम्युनल क्लीवेजेस इन द सोसाइटी, द कास्ट बेस्ड, the caste oriented cleavages, division in the society would go away, कि ये रिजर्वेशन से है, ये जनरल से है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कोई गरीब है उसके लिए फिर भी अमीर आदमी के मन में सिंपैथी रहती है, ठीक है। अगर कोई रिजर्वेशन के बेसिस पे और रिच है तो दैट क्रिएट्स अ डिविजन इन द माइंड्स कि ये रिजर्वेशन से इसीलिए इसको बेनिफिट मिल गया। वो सब चीज़ें कम होनी चाहिए 21st सेंचुरी इंडिया में, राइट। एंड दिस विल लीड टू ऑटोमेटिकली, अगर ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है, इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू व्हाट, रिकग्निशन और एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्रीमी लेयर ऑन SC/ST। ग्रेजुअली अपने आप होने लगेगा, ऐसे नहीं होगा। दो अ गुड बिगिनिंग हैज बीन मेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 10% EWS कोटा। क्लियर, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। अब किस बेसिस पे किया गया है? SR सिन्हो कमीशन, SR सिन्हो कमीशन, SR सिन्हो, SINHO। This commission, SR Sinho commission, said that in 2010 it said that reservation or economically backward classes commission 2006, economically backward classes commission भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कमीशन 2006, इन्होंने ये कहा था रिजर्वेशन शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। डन। द reservation in the government jobs and academic institutions should be given to general category poor, and a constitutional amendment is necessary in this respect. Clear? Commission highlighted that non-income tax payee general category people, Commission highlighted that non-income tax payee general category tax payee non-income tax payee general category people were economically backward. In bracket you can write they are at par with OBCs. They are at par with OBCs belonging to नॉन क्रीमी लेयर, है ना। कास्ट ही तो नहीं लगा बस सिर्फ इसलिए कि किसी को बैकवर्ड कास्ट में जन्म नहीं हुआ, लेकिन वो गरीब के घर में पैदा हुआ है तो रिजर्वेशन तो उसको भी बनता है ना अगर कास्ट के लिए दिया जा रहा है। तो ये लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। दे शुड बी ट्रीटेड लाइक अदर बैकवर्ड कास्ट्स। और क्या कहा था इसने, एक बड़ी अच्छी ये दी थी, economically backward caste children, economically backward classes children or children belonging to economically backward classes
should be given soft loans. Soft loan at a lower rate of interest or without any kind of collateral, ये सब लोन देने की ज़रूरत है. Scholarships, coaching for central and state civil services examination, they should be given coaching for central and state civil services examination on the government money. And government support in housing sector, क्लियर, ये सारी चीज़ें करी गई. तो वे फॉरवर्ड में हम ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. देन now coming here, now what are the challenges before EWS quota? What is the criticism? पहले criticism लिख लो. What is the criticism of EWS quota? Criticism of the way in which EWS quota has been provided. Criticism of the way in which EWS quota has been provided. Critics claim that 8 lakh rupees income threshold is very high. Critics assert that 8 lakh rupees quota as the threshold is very high and practically covers 80% of India's income, 80% of India's population. ठीक है. Just a minute. Oh, this tab battery has gone down. Ajit, उधर से वो iPad ला दो, इसको चार्जिंग पे लगा दो, जल्दी ला देना. Number 2, critics say that it is in violation of the Supreme Court judgment in Indira Sahane case. Critics say that this amendment is in violation of Indira Sahane judgment 1992. In 1992 इंदिरा सहाने केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द सोल बेसिस. बता दिया मैंने, ठीक है. Another major criticism is determining the economic backwardness. Another major criticism is determining the economic backwardness. क्या चार्जिंग पे क्यों नहीं लगाया? Another major criticism is economically backward. I mean, how to determine, ठीक है. एक और चैलेंज आता है, how to determine this thing. How to determine the economic backwardness. अब आता है फिर एक और criticism है, when the jobs are shrinking, in the times when the public sector jobs are shrinking, at a time when public sector jobs are shrinking, what is the relevance of this?
दिस इज जस्ट अ पॉपुलिस्ट मेजर. पॉपुलिस्ट मतलब वोट गार्नरिंग, ठीक है, लोक लुभावना, पॉपुलिज्म. तो दिस इज being brandished as, this is being labeled as a populist measure, because at a time when PPP, public private partnership based outsourcing, contractual jobs are increasing in number and vacancies in the government jobs are going down, what is the relevance of this? Government is just trying to soothe the, to create the raw nerve and then soothe it. समझ में आया? पहले जानबूझ के जले पे नमक रगड़ दिया और फिर उसके बाद बोला मरहम भी हम ही दे रहे हैं. क्लियर? कंक्लूजन में क्या लिखोगे? इट वुड बी प्रॉपर, इट वुड बी बेटर, it would be a much warranted or much needed step that existing reservation criteria should be reviewed. It would be proper to review the existing criteria of reservation. For SCs, STs and OBCs, and to implement creamy layer for SC category, SC and ST category, and to implement the creamy layer norms for SC and ST category. SC और ST category के लिए भी creamy layer norms को implement किया जाए, so that only the most deserving backward candidates, so that only the most deserving backward sections of society candidates should be eligible for this. Clear? Should be able to get selected and come forward in the development story. Another way out could be, अब देखो प्राइम मिनिस्टर की लाइन हम टो कर रहे हैं, कैसे? Another way out could be to focus on self-employment and skill development through the schemes like Startup India, and Pradhan Mantri Mudra Yojana. और क्या लिखूँ? As our Prime Minister rightfully says, as our Prime Minister rightly puts it in this way, that youth should not be job seekers, they should be job creators, right? पब्लिक सेक्टर का जो एरा है वो जाते चले जा रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं. बट हाँ, जो जॉब्स एमिनेट हो रही हैं राइट टू इक्वालिटी का ट्रू एसेंस कैप्चर करते हुए, ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिजर्वेशन का रिव्यू होना ज़रूरी है, ताकि जो चीज़ें, जो जॉब्स एमिनेट होंगी उनको अच्छे से एलोकेट किया जाए, उनको उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया सही होना चाहिए. ठीक. और इसमें यह भी हो सकता है कि वी शुड मेक श्योर दैट देयर शुड बी अ beneficiaries use their reserved category status only once in their lifetime, जो मैंने अभी पॉइंट बताया. ठीक है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, स्कूल पेनिट्रेशन रेशो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस ज़्यादा होने चाहिए, ताकि रिजर्वेशन की ज़रूरत ही ना पड़े. ठीक है, रिजर्वेशन की ज़रूरत ना पड़े. और टू ऑफसेट, guys, I'm not able to assess your,
have a look at your comments. Just 1 minute, I'll have to log in here. So just let me check your comments. Caste, socio-economic caste census, it was conducted in July 2015. Socio-economic caste census, वो SECC socio-economic caste basis पे सीट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है. No, we are concluding in a manner, in these type of questions you need not take the sides. You should not end up revealing as to what caste or community you belong to, right? You should be thinking of yourselves as an administrator. जो धीरे धीरे से अपने आप अप्रोच चेंज होने लग जाएगी कि क्या सही है क्या गलत, तो फिर आपको एंड में गवर्नमेंट के प्रो लिखना है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एज आर प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वी आर नॉट सेइंग नरेंद्र मोदी इज सेइंग हियर, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, person who is sitting at the constitutional post is saying this, so it is not wrong. He cannot be wrong, right? Because he is the prime minister and we have to respect him even if he does not deserve it, right? समझ में आया? वो एक अलग चीज है. Just 1 minute. Clear to everyone? Even if you do not love him, then also just think of yourself as an administrator. तो ये सारी. So this is there. Fine for everyone now? Have I missed out on any of your important comments? No. No, I think no, I haven't. All right. So this was all. अब ये था इसका कंक्लूजन. समझ में आया? किसी को कोई डाउट? इतने से ही पॉइंट्स हैं, ठीक है. सोशल अपलिफ्टमेंट मेजर्स होने चाहिए और प्राइवेटाइजेशन पे फोकस है. Another debatable question you can just write down. Around these points you have to write the answer. Now we are starting the question answer session today onwards. Do you think that there should be reservation in the private sector? Do you think that there should be a reservation in the private sector considering the increasing privatization of the sectors or arenas where government used to perform the task previously? Do you think that there is a case for reservation in the private sector considering the increasing privatization of sectors or arenas where previously government was a dominant player? Try to capture the essence of the argument. ठीक है. Then do you think that economically weaker section criteria for reservation is a good step? ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें. Then shall we proceed to the next thing? 15 का analysis more or less हो चुका है. Takeaways, the points that you need to memorize for the prelims, okay, are available only to citizens. ये खुद से go through करोगे, right? I can add emphasis, but I think the colors here are doing this job quite well. तो different colors जो हैं वो आपको बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ना है. If in case you face any problem, I'm here only. Now, in other words, discrimination on the other grounds is not prohibited. यहाँ पे क्या लिखा है? If the state can come up with, ये मैं कल समझा चुका हूँ, तो there is nothing to be explained. Meaning of socially and economically backward classes is different from the meaning of other backward classes. ठीक है. तो for example, as per socio-economic caste census, a new criterion could be established. Criteria क्या है? नया criteria. Socio-economic caste census में 7 parameters have been adopted, which will talk about कि socio-economic caste census July 2015 में लाया गया था. 4th of July 2015 the report was made public, in which
7 आइडेंटिफाइबल क्राइटेरिया हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। क्या क्राइटेरिया है उसके? किसी के पास कच्चा घर है, कोई विडोड है, कोई विडो हाउस होल्ड है, या कोई ऐसा कोई डिसेबल्ड उस घर का अगर मेंबर है, इफ वन ऑफ द डिसेबल्ड फैमिली मेंबर्स इज देयर देन दैट हाउस वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट, इकोनॉमी पे वो बर्डन हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी के पास स्कूटर है, टू व्हीलर है, तो वो कास्ट बैकवर्ड होते हुए भी उसे बैकवर्ड नहीं माना जाएगा। क्लियर? कुछ ऐसा सा क्राइटेरिया, वो हम स्टडी करेंगे, वो चीज़ें जो है थेरेटिकल है, आपको टॉपअप मटेरियल में मिल जाएंगी। द फर्स्ट डिस्पैच ऑफ टॉपअप वुड बी डन ऑन 21st of August. You will be getting 3-4 booklets, so that will be the starting of the top-up thing. And the polity book that was shared a few days ago is being proofread so as to eliminate some mistakes that were there. तो कुछ चीज़ें हैं। Now आगे चलते हैं। ये हो गया 15 रिलेटेड आर्टिकल्स। ये क्या रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 वाज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ scheduled caste। तो अदर आर्टिकल्स scattered at various places, ठीक है। आर्टिकल 46 ये कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ scheduled caste, scheduled tribe। ये दिस इज गिवन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अगेन। देन आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। clause 2 says that no citizen shall be denied admission into any educational institution। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। देन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रिजर्वेशन दिया कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%, दो रीजन थे। एक तो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए, दूसरा क्लेम्स ऑफ scheduled caste and scheduled tribes to services and posts। this is given at a different place। Article 335 is given outside part 3, it is not given in part 3। claims of members of scheduled caste and scheduled tribes shall be taken into account consistently with the maintenance of efficiency of administration। यानी कि प्रशासनिक सेवाओं में गुड गवर्नेंस के लिए भी इसमें स्कोप है। प्रवीण, जो आपने मैसेज पोस्ट किया टेलीग्राम पे, नोट्स विल बी अपलोडेड, ओके। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपको इस पे समरी मिल जाएगी। समझने पे फोकस दो, चीज़ें रिटन में ब्लैक एंड वाइट में मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम मेरिटोरियस कैंडिडेट, कोई ना कोई क्राइटेरिया लगाना पड़ता है। यूपीएससी का क्राइटेरिया जो है बेस्ट नहीं है, नहीं तो मैं उस पार होता, मैं एकेडमी में होता, वो अलग बात है, ठीक है। तो अगर मान लो कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम बिल्कुल दरकिनार कर दें, मेरिट इज द क्राइटेरिया, कोई ना कोई मापदंड तो लगाओगे ना कि कौन सर्विसेज में जाएगा कौन नहीं जाएगा, या तो रेस में दौड़ाओगे या कोई कॉन्टेस्ट करवाओगे, कुछ क्राइटेरिया। तो ये एक रीजनेबल क्राइटेरिया है कि ठीक है, एक एकेडमिक टेस्ट लेते हैं, फिर उसमें इंटरव्यू होगा, जो सिलेक्ट होगा वो टॉपर, ठीक है, वो मेरिटोरियस है, मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे। अब अगर कम मार्क्स वाले लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो मेरिटोरियस कम है, मेरिटोरियस नहीं है, है ना। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने इस क्राइटेरिया को अडॉप्ट किया है, यानी कि जो लोग इसमें ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं वो ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स बनेंगे? गलत है ये, ठीक है, सारा कुछ फ्लॉड लॉजिक है, सब मोह माया है, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई पर्सन ये सर्विसेज में ये कहे कि तुमने 100% रिजर्वेशन कर दी और मेरा राइट टू गुड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इतना ज़्यादा रिजर्वेशन कर दिया, वो भी तो वैलिड माना जाएगा ना फिर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि दैट द क्लेम्स, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि स्केड्यूल्ड कास्ट या स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के क्लेम्स को, रिजर्वेशन के क्लेम्स को एंटरटेन करते समय सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का भी ध्यान रखे in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the union of a state or union or a state। समझ में आया कि इनके कंसर्न्स के चक्कर में कहीं पता लगे कि सर्विस का, पब्लिक सर्विस क्या हो गई, रिजर्वेशन सर्विस ना बन के रह जाए। समझ में आया ये?
then there comes a case for Equal Opportunities Commission. Please remind me tomorrow to speak on this, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन जो 16 आर्टिकल 16 का एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद ही अच्छा रहेगा. क्लियर? सो दिस इज देयर. नाउ और रिलेटेड आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, clause 5 that reservation can be made applicable to private educational institutions finds a mention. It was inserted by constitutional 93rd Constitutional Amendment Act 2005. मैं इसको कैसे याद रखूंगा? 5 clause 5 93rd Constitutional Amendment Act. ठीक है, तो it inserted clause 5 in article 15 of the constitution with an aim to promote educational advancement of the socially and educationally backward classes of citizens, scheduled caste and scheduled tribe. ये हो चुका है. ठीक है, this amendment was enacted to nullify the Supreme Court judgment in इनामदार case. इनामदार केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट कैन नॉट इम्पोज इट्स रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी एंड अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. स्टेट जो है अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी किसी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉलेज पे नहीं लगा सकता, इंक्लूडिंग द प्राइवेट कॉलेजेस. कोर्ट डिक्लेयर्ड द रिजर्वेशन इन प्राइवेट unaided educational institutions as unconstitutional because it comes into clash with article 19 clause 1 subclause G. अभी ये 19(1)G एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे, कल तुम्हारा होमवर्क भी अच्छे से पढ़ के आओगे, मैं बता रहा हूँ अभी. ठीक है, ये हो गया. अब बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ बैकवर्डनेस. डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस फर्दर? तो इनामदार केस में सुप्रीम, अब इसको इनामदार को क्या रखोगे? ये इनामदार केस में सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कैटेगरी को इनाम दिया था, मतलब ये एक वैसे इनाम था उनके लिए कि ठीक है रिजर्वेशन नहीं अप्लाई होगा, लेकिन इसको 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से नलिफाई कर दिया गया. डन. नाउ प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर अपॉइंट अ कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ सच पर्संस एज ही थिंक्स फिट टू इन्वेस्टिगेट. प्रेसिडेंट को एक बाय ऑर्डर, पार्लियामेंट नहीं लिखा यहाँ पे, प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बाय ऑर्डर अपॉइंट अ कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ सच पर्संस एज द प्रेसिडेंट थिंक्स फिट टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. सिंपल सिंपल सी चीजें हैं. ठीक है, within the territory of India and the difficulties under which they labor and to make recommendations as to the steps that should be taken. कि कमीशन ये भी बताएगा कि क्या स्टेप्स यूनियन को लेने हैं और any state to remove such difficulties and to improve their condition. And as to the grants, 3 चीज़ें हैं. ठीक है, ये क्या क्या करेगा? एक तो कंडीशन क्या है, नंबर 1. दूसरा recommendations as to the steps that should be taken by the union and the states to remove such difficulties. Third, the grants. ठीक है, क्या ग्रांट्स देनी चाहिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कमीशन के लिए? तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस लगाया गया. क्लियर? अर्लियर इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट मीन्स जस्ट एन एक्ट वाज देयर. Now it is a constitutional body. Constitutional body का मतलब ये है कि अब इसके लिए संविधान में NCBC के लिए स्पेशल प्रोविजंस डाले गए हैं, इंसर्ट किए गए हैं 2014. क्लियर? इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट. एकता, देखो कितना गुस्सा है ना तुम लोगों में, मैं बोल नहीं रहा, नाम नहीं ले रहा, वैसे तुम लोगों को रिजर्वेशन के नाम पे गुस्सा आ जाता है ना. हाउ इज इट अ मैटर ऑफ राइट? मन करे आरक्षण मूवी में तुम्हें रोल दिला दूं, है ना. नाउ कमिंग हियर, as to the grants that should be made for the purpose by the union or any state, the conditions subject to which such grants should be made. क्या कंडीशंस होनी चाहिए? ठीक है, एनसीबीसी को अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है. पहले इसको धीरे धीरे से समझेंगे. इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उस पर भी कुछ नोट्स रहेंगे.
रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 14 एंड 15 एज पर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में ये कहा कि राइट टू इक्वालिटी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड एफर्मेटिव एक्शन इज इटसेल्फ सैंक्शन्ड बाय राइट टू इक्वालिटी। अगर कोई लोअर पेडेस्टल पे है, उसको ऊपर लाने के लिए आप आर्टिकल 14 में इसके प्रोविजंस दे रखे हैं। वो अलग बात है कि आर्टिकल 15 उनको पहले से कह रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आर्टिकल 15 नहीं भी होता तो राइट टू इक्वालिटी इटसेल्फ सैंक्शंस द क्रिएशन ऑफ कंडीशंस फॉर इक्वालिटी टू प्रिवेल। आई रिपीट, राइट टू इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल 14, itself sanctions the creation of conditions for equality to prevail। समझ में आया? So this is there। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, बट इफ द डिस्क्रिमिनेशन, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रिजर्वेशन वगैरह, या किस बेसिस पे किसी को पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, रिजर्वेशन या कोई और बेनिफिट्स दे रहे हो, उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया दिया इंदिरा साहनी केस में? इंदिरा साहनी केस 1992 में ये क्राइटेरिया दिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। जो डिफरेंशिया है कि इसको रिजर्वेशन दी जा रही है, उसको नहीं दी जा रही, तो इन दोनों में जो क्राइटेरिया में डिफरेंस है वो एक रीजनेबली इंटेलिजेंट माइंड को समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिशियन चुनाव लड़ने जा रहा है सिर्फ उसी को ही समझ में आए कि इससे वोट मिलेगा इसलिए रिजर्वेशन दे रहे हैं। समझ में आया? ये दिखना चाहिए कि वो वाकई ही बैकवर्ड है। नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव, अब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कि कोई पब्लिक सर्विस में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, कहीं पे शिक्षा का स्तर बहुत ही लो है किसी कम्युनिटी में, कास्ट में, इसलिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। क्लियर? यस। तो जो भी है साकेत। नाउ नेक्सस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द स्टैट्यूट, देन द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। क्या कनेक्शन है? जो आप रिजर्वेशन या ऑब्जेक्टिव बता रहे हो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन लोगों को जिनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है उनको अपलिफ्ट करना, और क्या जो लॉ आप लेके आ रहे हो रिजर्वेशन के लिए, क्या उससे वो वाकई ही अपलिफ्ट होंगे? समझ में आया? तो ये चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन का कोई भी लॉ कानून में, सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशियल रिव्यू में तभी सरवाइव करेगा जब वो इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। क्लियर? वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, अब तीसरी चीज ये आ गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और वेलफेयर दोनों भाई भाई हैं। ऐसा नहीं है कि वेलफेयर के नाम पे जो है आपने एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में मेरिट को ही खत्म कर दिया। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड पुटिंग अ कैप ऑफ मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन। Article 16 clause 1, there shall be equality of opportunity for all the citizens in the employment. Supreme Court said Article 14, 15 and 16 and 35 have to be read together harmoniously. Doctrine of harmonious interpretation of Constitution, Supreme Court ने यहाँ पे apply किया। What does doctrine of harmonious interpretation of Constitution say? क्या कहता है ये डॉक्ट्रिन? ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहे हो, तो जैसे हारमोनियम बजाते हैं तो एक बीट जो है या एक की जो अब आप उसकी प्रेस करते हो वो दूसरी की के साथ में तालमेल से है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा तो इन्होंने इन आर्टिकल्स को हारमोनियसली इंटरप्रेट करना सोचा होगा। इन्होंने ये सोचा होगा कि कोर्ट या पार्लियामेंट इनको एक साथ रीड करके जो कंक्लूजन निकलेगा वो निकालेगी। समझ में आया? ये नहीं है कि अलग अलग देखोगे तो 16, 15 तो ये कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन दी जा सकती है और ये सब, 35 ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अब सिर्फ 335 को पढ़ोगे तो ये लगेगा कि रिजर्वेशन होनी ही नहीं चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए। इसलिए दोनों को साथ मिलाकर पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि 50% रिजर्वेशन दो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसे इंटरप्रेट किया है। क्लियर? तो ये हमने पहले पढ़ रखा है आर्टिकल 14, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस भी रिजर्वेशन को जस्टिफाई करता है। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आए, और वैसे भी क्लियर होना चाहिए। मंडल कमीशन एंड इंदिरा साहनी केस, इसको कल करेंगे पूरा थ्रेडबेयर वे में, ठीक है, कि क्या है ये क्या नहीं।
This is your homework for today. And then SC created this 50% reservation rule in 1963. It is not a new rule. आज ये बोला जाता है लेकिन 1963 से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था. ठीक है. आज भी स्टूडेंट्स दे कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन कि तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन है 69% है और अब 74% हो गया है. क्यों? वहाँ पे क्या है कि क्वांटिफाइबल डेटा, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस जब आज आप पढ़ोगे होमवर्क में तो आप ये समझोगे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई स्टेट रिजर्वेशन देना चाहती है 50% से अबव तो वो क्वांटिफाइबल डेटा लेके आए. ये डेटा वो दर्शाएगा कि हाँ वाकई ही उस स्टेट में और कैटेगरीज हैं जो बैकवर्ड हैं और वो रिजर्वेशन डिजर्व करती हैं. ठीक है. आर्टिकल 16 पे थोड़ी सी एक बार बात कर लेते हैं कंक्लूडिंग नोट पे. आर्टिकल 16 ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सेक्टर. ऐसा क्यों है? Why is it the case? Why is the equality of opportunity important in public sector? Public sector, of course, it plays a dominant role in our society, in our lives. सोसाइटी छोड़ो, इन आर डेली लाइव्स, है ना. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर हम देखें कि कास्ट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी हमारी कंट्री में, इवन आज भी है कुछ एरियाज़ में, कि अगर कोई ऊंची जाति को बिलोंग करता है तो वो नीची जाति के एरिया में पानी सप्लाई नहीं करेगा अगर कोई आईएएस ऑफिसर्स हैं. आज भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, नेता हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस हैं. तो एक टर्म आता है रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी. प्लीज राइट डाउन व्हाई the adequate representation in public services is so very essential. That Constitution has made it a criteria via Article 16. Why the adequate representation in public employment is so important, that Constitution has made it an important parameter via Article 16. Question mark. Answer is it emanates from the answer is it emanates, EMANATES, from the concept called representative bureaucracy. Representative bureaucracy, that all the sections of society, that is all the sections of society should be adequately represented in public services. That all the sections of society should be adequately represented in public services. Now the question is why they should be adequately represented in public services. जब आप छोटे थे, अभी स्कूल वगैरह से निकले हो गए ना, तो वहाँ पे क्या होता था, पेरेंट्स ये बोलते थे, आप बोलते थे कि पापा ये फॉर्म जो है डुप्लीकेट हैं, अटेस्ट करवाने हैं, गवर्नमेंट के गेजेटेड ऑफिसर के पास जाना है. बोला जाता था ना, आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा होगा पेरेंट्स को कि स्कूल से जब पास आउट हुए CBSE के वो फॉर्म्स अटेस्ट करवाने ज़रूरी थे. बोला था कि नहीं, कि खुद ही मोहर लगा के चले गए थे तेलगी की तरह. तो फादर ने क्या बोला होगा? फादर ने ये बोला होगा ठीक है मुझे दे दो, हमारी जात के वो प्रिंसिपल हैं, वो गजेटेड ऑफिसर हैं, या कोई PCS ऑफिसर हैं, या एक डॉक्टर हैं, वो हमारी जात के हैं, या हमारे गांव से हैं, या हमें जानते हैं, उनसे हम स्टैंप लगवा देंगे. सभी के घर में ऐसा होता है, ठीक है, बोला गया होगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि योर फादर इज टेलिंग यू दैट यू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन पब्लिक ब्यूरोक्रेसी. ठीक है. अब अगर आप किसी दूसरी जात के ऑफिसर के पास जाओगे, वो 10 बार डॉक्यूमेंट देखेगा, कहीं ओरिजिनल वाला फर्जी तो नहीं है. वो ये बोलेगा ना कि कहीं ओरिजिनल वाला तो फर्जी नहीं है, पता लगा कि ओरिजिनल वाला ही फर्जी हो, वो 2-4 नुक्ताचीनी करके बोलेगा मैं नहीं लगा रहा.
राइट। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी का कल्चर है, ठीक है। बहुत सारे एरियाज में ऐसे होता है कि काम फंसते हैं, हमारे काम फंस जाते हैं। अभी जैसे आप यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करोगे, 4 बार गलतियां करोगे, फिर लगेगा अटेस्टेड करवाया है कि नहीं। ऐसे रोज़मर्रा के काम फंसते हैं। और भी बड़े बड़े काम होते हैं, न्यायपालिका में कोई नहीं है, दरोगा जी नहीं है, पुलिस वाले नहीं जानते, ठीक है। कास्ट क्लीवेजेस आर सो वेरी मच pervasive, so very deeply pervasive in our society. That is why representative bureaucracy was envisaged as a criteria. अब फिर क्वेश्चन ये उठता है कि एफ्लुएंट सेक्शंस की 4 छल्लियाँ वाली गड्डी लेके भी जो लोग आते हैं ना, कि 4 छल्लों वाली गाड़ी ले रखी है ऑडी, और फिर भी वो रिजर्वेशन का, पाटीदार्स का आंदोलन जब चल रहा था, मीडिया ने ये बोला, फिर हरियाणा में जो जाटों का आंदोलन चल रहा था रिजर्वेशन का, वहाँ पे हमर खड़ी है, फिर उसके बाद ऑडी खड़ी है, फिर जैगवार, मर्सिडीज़, कोई ऐसी ब्रांड नहीं थी, ट्रैक्टर पे लोग आ रहे। तो एक क्वेश्चन ये उठाया मीडिया ने कि जो रिलेटिवली प्रोग्रेसिव सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक सर्विसेज, शुड दे ऑल्सो बी गिवन रिजर्वेशन। समझ में आया? क्या उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा? तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगी। एक सेक्शन तो ऐसा है जिनके पास ऑडी छोड़ो रोटी नहीं है खाने को, फिर उनका क्या होगा? जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रेज देयर वॉइस, जस्ट बिकॉज उनके आगे कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसे नेता बनना है, उनकी आवाज़ को अंजाम नहीं मिलेगा, है ना। इतने डाउन ट्रोडन सेक्शन भी नहीं है यहाँ पे जो आवाज़ नहीं उठा सकते, और वो पब्लिक सर्विस में भी रिप्रेजेंटेड नहीं है, और उनके पास खाने की रोटी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दी ट्रांसजेंडर्स, दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। कोई वो ऑर्गेनाइज होंगे तब भी आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। तो इसीलिए राम सिंह जजमेंट 2014, इन 2014 जजमेंट जाट रिजर्वेशन केस, राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, Supreme Court said that the state should think beyond the reservation on the basis of caste and creed, and it should think of reservation on the basis of new and evolving criteria. It should think of reservation on the basis of new and evolving criteria, emerging criteria. For example, reservation for transgenders, disabled. They cannot raise their voice, they cannot go to the road and do the chakka jam, right? And people who are blind, Divyangjans, disabled, right? इन सब लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि जो प्रोग्रेसिव सेक्शंस हैं उनके बारे में। तो 2014 की कांग्रेस की रिजर्वेशन पॉलिसी को दरकिनार कर दिया गया, मतलब इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। 1990 में गवर्नमेंट डिक्लेयर रिजर्वेशन ऑफ 27%, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। मंडल कमीशन जो केस है, इंदिरा साहनी और मंडल कमीशन केस इसे पॉपुलरली कहा जाता है। रिजर्वेशन के अराउंड जो भी ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो कल कवर किया जाएगा, क्लियर सारा कुछ। देन कुछ और छोटी छोटी चीज़ें, इसको पूरा पढ़ोगे, ठीक है। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है ये सारा स्टफ, अच्छे से फटाफट से पढ़ोगे इसे, कल पढ़ के आओगे क्लास में, राइट। और is there a need for equal opportunities commission in India? Assess the case, please write down, assess the case for equal opportunities commission in India. Any doubts? This is the case that I was referring to. Everything is here, ठीक है। Judgment directed the government to recognize emerging socially and educationally backward classes, transgenders, ये सारे लोगों को। अब ट्रांसजेंडर्स के लिए भी रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट डाउन प्लेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कास्ट इन डिसाइडिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स। फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन 123rd अमेंडमेंट बिल, तो ये NCBC है, इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे कल की क्लास में। 338A 338B कॉन्टेम्प्रेरी रेलिवेंस, ये भी चीज़ें समझेंगे, ठीक है, कि NCBC पास किया गया, ये सारा कुछ है।
डीलिंकिंग बैकवर्ड क्लासेस कमीशन फ्रॉम आर्टिकल 340, फिर 17, 18, 19, कल ये फटाफट से कवर हो जाएगा। 19 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। क्लियर? एनी डाउट्स गाइज? कितने लोग देख रहे हो? एक बार हाजिरी लगाओ फटाफट, चेती फटाफट हाजिरी लगाओ। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन, alright, a good number. Be regular guys, okay? So that's all I can request. बाकी सारी चीज़ें मेरे ऊपर, लेकिन तुम्हारी रेगुलरिटी इज़ इन योर हैंड्स, राइट? एनी डाउट्स गाइज? कोई भी डाउट्स? लास्ट 15 मिनट्स। वन कास्ट वन रिलीजन कैसा रहेगा ऑप्शन इन द एरा ऑफ प्राइवेटाइजेशन? कास्ट कैसे चेंज करोगे? रिलीजन कैसे चेंज करोगे? राइट? एफिशिएंसी के लिए ये किया गया था, ठीक है? जाते जाते बता दे रहा हूँ कि जब वर्ना सिस्टम भी था उसमें भी 4 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया गया था, क्षत्रियास, ब्राह्मण्स, है ना, रिजर्वेशन को, सॉरी, एफिशिएंसी को क्राइटेरिया बनाने के लिए, कि जो सो कॉल्ड, बस इसमें दिक्कत ये थी कि एक आदमी जो एक जात में पैदा हुआ है वो प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकता, वो इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है? सोसाइटी कभी ना कभी तो क्लास बेसिस एफिशिएंसी को रिकग्नाइज करने के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पे कास्ट को क्राइटेरिया बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे क्या है, क्लास को क्राइटेरिया बनाया जाना सही है। क्यों? अगर कोई इस कास्ट में भी पैदा हुआ है, मान लो कि अगर हम इसे डी कास्ट बोलते हैं, कहना गलत है बट समझाने के लिए, ठीक है, तो कोई डी कास्ट में पैदा हुआ है फिर भी वो अंबानी बन सकता है, रिच क्लास में जा सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई अगर कास्ट सिस्टम में ही ट्रैप में रहेगा, इवन इफ ही इज इंटेलिजेंट, ही हैज एन IQ, वेरी गुड IQ कंपेयर टू द पर्सन ए हेयर, फिर भी वो ऊपर नहीं चढ़ सकता। क्यों? सीलिंग है कि आप ये काम कर ही नहीं सकते, इवन दो ही इज बेटर। समझ में आया? इसीलिए हम इसको अब डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं और इन इट्स प्लेस हम दूसरे क्राइटेरिया को लाना चाह रहे हैं। समझ में आया? तो सोसाइटी में, इकोनॉमी में, किसी भी सिस्टम में एफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। अगर एफिशिएंसी रिकॉग्नाइज नहीं होगी तो वी वुड कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, अ स्क्रीचिंग हॉल्ट, ठीक है? फिर रुक जाएंगे हम, प्रगति नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी, फिर हमारी कंट्री का प्रोग्रेस रुक जाएगा, गरीबी एमेलियोरेट, गरीबी जो है ख़त्म नहीं कर पाएंगे। एफिशिएंसी रिकॉग्नाइज करना सही है, राइट? यस, रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिक बेसिस पे ज़रूरी है, ये होना चाहिए, राइट? रिफॉर्म होना चाहिए। कुछ कास्ट जो है बिल्कुल बैकवर्ड्स हैं, सबसे पहले जो है वन टाइम पॉलिसी लानी चाहिए कि एक बार जैसे रिजर्वेशन मिल गया उसे दोबारा नहीं मिलना चाहिए। क्लियर? यस, यू आर राइट प्रतीक। जाति सिस्टम और ये सब चीज़ें जो हैं सोशियोलॉजी के लिए हैं। जाति के बेसिस पे जब डिस्क्रिमिनेशन होने लगा उसमें दिक्कत है, कास्ट सिस्टम में जब बदल दिया गया, राइट? सो दिस वाज ऑल। यस जयप्रिया, यू आर ऑल्सो राइट। ठीक है, अब कल 16 फटाफट से पढ़ेंगे क्योंकि 15 के दौरान डिस्कशन पे हमने सारी आर्टिकल्स जो 16 से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कवर कर ली हैं मोर और लेस। कुछ और चीज़ें रह गई हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन एक्सेट्रा, विच विल बी कवरिंग टुमारो। सो दिस वाज ऑल एंड यू वुड बी प्रोवाइडेड हैंड आउट, सॉफ्ट कॉपी 1-2 पेजेस की रहेगी जिसमें arguments in favor, arguments against, equal this economically weaker section would be provided. All right, thank you everyone, good night guys, thank you. Thank you guys.